then Chief Minister Prithviraj Chavan. She has been a columnist for various newspapers and compare culture programs on a regular basis and in three languages, English, Hindi, and Marathi. As she has done MSc in chemistry and MA in psychology, she is also MA, and also she has pursued PG diploma, the postgraduate diploma in school management. And she is the lecturer in chemistry since 1991 to 2020 in St. Joseph Junior College. So apart from that, there are many things that I wanted to describe over here. She is the co-author and write 4 chapters in the science and technology textbook for standard 10th. And here, and the member board of studies for chemistry, MSc, the coordinator of senior and selection grade training, Nagpur division, coordinator of training for tribal teachers and students in her tenure, the overall results of the trial students appearing for class 12. And the resource person, Macmillan resource person, conducted various sessions on various topics for parents. And today she is among us, that she is just guiding to the student for their career selection. As we know that career selection is very much important, and at the right time, the right career should be chosen. So it will lead to the very good life. So ma'am, thank you so much for just coming and just giving your precious time. And I would like to ask you to have the session. Thank you very much, Santosh sir, for such chosen words of appreciation of yours for me. It's really wonderful to be with you all once again. I had been to Gadarwada, to your school, the prestigious school, been with you all, and it's really very, very, what should I say in words? I feel very delighted to be with you all once again. I am equally happy to have the team of Macmillan with whom I am working since last so many years, and it's really a family get together today. And indeed, as I am a teacher by choice and not by force, the utmost importance for me is for my students. Whether they are here in Nagpur in front of me learning, or they are anywhere and they want to have interact with me, it's always my pleasure to be with you all. Thank you once again to have me with you all on this important and wonderful session. Kabra sir, special thanks to you for approving me to be there with you all for this session. Dear students, sir, I would just like to take your permission first. You want me to interact in English or in mix Hindi and English both? You just let me know that so that I can proceed accordingly. Madam, I think parents will understand easily. They will understand in Hindi here. So we can be bilingual if you are comfortable. Okay, I can be bilingual, no? Thank you so much. Okay. The most important turning point for all of us is our board exam. The first board exam we appear is the most important, the turning point is 10th class. After 10th, we have to choose a line, and then comes the turning point of the 12th class. मुझे ऐसा लगता है कि 10वीं की एग्जाम के लिए जब आप अपीयर होते हैं तो मन में काफी मिक्स फीलिंग्स रहती हैं, थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ी एंजाइटी रहती है, थोड़ी चिंता होती है, पर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ सपने भी साकार करने रहते हैं, उसके लिए भी हम इस परीक्षा की ओर देखते हैं. आफ्टर 10th क्लास वी हैव टू चूज आवर फील्ड. वैसा देखा जाए तो इंडिया में मैं पहले एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूंगी. सिलेबस एंड करिकुलम, जिसे कहते हैं पाठ्यक्रम और अभ्यासक्रम, इसमें फर्क होता है. द करिकुलम इज अ रफ गाइडलाइन एंड द सिलेबस इज द एक्चुअल चैप्टर विच इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स. ये कौन डिसाइड करता है? ये NCERT डिसाइड करता है. CBSE एक बोर्ड है जो कि भारत सरकार के कुछ एम्प्लॉइज जिनकी ट्रांसफर होती है और जो बड़े शहरों से छोटे शहरों में भी जाना पड़ता है ट्रांसफर के कारण, उनके बच्चों के शिक्षा के कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये CBSE बोर्ड बनाया गया. ये CBSE बोर्ड
10th और 11th, इसमें हमको काफी ऑप्शंस देते हैं. देयर इज ऑप्शन फॉर यू ऑन कि आप 10वीं में सीबीएसई से पास करने के बाद आप अपनी स्टेट के 11th-12th के भी क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट फॉर यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि 10वीं सीबीएसई से पास किया है तो आपको 11वीं 12वीं भी सीबीएसई में ही करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है. हाँ, आप कर भी सकते हैं या फिर आप स्टेट बोर्ड में शिफ्ट हो सकते हैं. अब सवाल रहेगा कि स्टेट बोर्ड यानी क्या, केवल हमारे राज्य का? नहीं, आप दूसरे राज्यों में भी जाकर 11th-12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी अगर आप दूसरे राज्य में गए तो. हम बात करेंगे आज ऑल इंडिया लेवल पे हम लोगों को 10वीं के बाद और स्पेशली 12वीं के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. मैं पहले बताना चाहूंगी आप लोगों से, कुछ पेरेंट्स भी हम लोगों के साथ है, इसलिए उनको भी कुछ बातें बताना चाहूंगी. बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था कि हम लोगों को केवल आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये तीनों ही स्ट्रीम्स के बारे में पता रहता था. वी ओनली यूज्ड टू नो अबाउट 3 थिंग्स, आइदर द चाइल्ड हैज टेकन साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स. आज हम लोगों के पास उसके अलावा भी ऑप्शंस अवेलेबल है. आप पूछोगे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स नहीं लेंगे तो और क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं. The first thing we can take is we want to go in for technical side or not. अब टेक्निकल साइड में हम लोगों को आता है ITI. ओके, ITI में छोटे छोटे कोर्सेस रहते हैं. देखिए, हम आप इंडिविजुअल है, वी ऑल आर इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट कैपेसिटीज. हम सबकी बुद्धिमत्ता अलग अलग है और इसलिए फर्स्ट मेरिट आने वाले से 50% वाले को कंपेयर नहीं करना चाहिए. हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है. हो सकता है 50% जिसे मिले उसको परसेंटेज मैथ साइंस में कम मिला हो, लेकिन उसकी बुद्धि दूसरे किसी विषय में अच्छी चलती हो. इसलिए पेरेंट्स को भी ये ख्याल करना है कि हमारे बच्चे को मैथ्स और साइंस के अलावा भी कुछ अच्छा लगता है. तो अगर लगता है तो क्या, देयर आर मेनी ऑप्शंस इन ITI एंड दे आर शॉर्ट टर्म कोर्सेस. 1 साल के, 1.5 साल के ऐसे कोर्सेस है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं 10वीं के बाद. There is one more branch and that is known as bifocal, जिसे द्विलक्षी अभ्यासक्रम कहते हैं. द्विलक्षी अभ्यासक्रम के लिए लेकिन आप लोगों को ज्यादातर साइंस के जरिए इसमें प्रवेश लेना पड़ता है. उसके अलावा हम लोगों को IT नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है जो आर्ट्स के साथ भी है, कॉमर्स के साथ भी है और साइंस के साथ भी है. तो प्लीज अपने मन में से ये दुविधा निकाल दीजिए कि मुझे तीनों में से कौन सी एक ही ब्रांच चूज करनी है, यानी आर्ट्स ही लेना है या कॉमर्स ही लेना है या साइंस ही लेना है. बेशक वे 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, उसके अलावा भी अपने पास बहुत कुछ है. मैं आती हूँ साइंस ब्रांच की ओर. सबको पता है साइंस ब्रांच में आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हम लोगों ने साइंस लेने के बाद 12वीं के बाद या तो हम डॉक्टर बन सकते हैं या तो इंजीनियर बन सकते हैं. पर साइंस लेने के बाद और भी कई फील्ड्स हमारे लिए खुली होती है. जैसे कि शॉर्ट में बताती हूँ, साइंस लेने के बाद हम फार्मेसी के लिए जा सकते हैं, B.Pharm कर सकते हैं. साइंस 11th-12th में रहने के बाद 10वीं के बाद हम प्लेन साइंस में जा सकते हैं, जिसको हम बेसिक साइंसेस कहते हैं. बेसिक साइंसेस का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ साइंस, BSc अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है. BSc आप कर सकते हैं बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री लेकर. BSc आप कर सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेकर. BSc कर सकते हैं मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स लेकर. BSc कर सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस के साथ. BSc कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में. मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, डॉक्टर कलाम, उनसे मुखातिब होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हीं के कहने के अनुसार इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है उन बच्चों को जिनको 80% से ज्यादा मार्क 12वीं के एग्जाम में मिलते हैं और उसके बाद जो बच्चे बेसिक साइंसेस के लिए यानी प्लेन BSc के लिए जाते हैं. होता क्या है बच्चों, हम लोगों को इन स्कॉलरशिप के बारे में बहुत कम पता रहता है. ये नेशनल स्कॉलरशिप होती है, ये राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती है और ये स्कॉलरशिप ऐसी कोई 1000-1500 रुपए की नहीं है. BSc पार्ट 1 में आपको 50,000 से शुरुआत होकर
आप अगर पीएचडी करने जाए तो 1,20,000 रुपए तक के सालाना आपको ये स्कॉलरशिप के जरिए अच्छी मदद मिल सकती है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, देयर आर फैमिली प्रॉब्लम्स, एंड because of that children find it very difficult. They want to join different courses but then they are unable to do so because of the financial constraints. उन बच्चों के लिए तो ये इंस्पायर अवार्ड्स वाली स्कॉलरशिप्स बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं। अगर आप बेसिक साइंसेस में गए तो आप लोगों के लिए क्या है, तो आप कहोगे क्या हमको सिर्फ क्या साइंटिस्ट ही नहीं बनना, साइंटिस्ट की तो नौकरी मिलती ही है, साथ ही में आप में लेबोरेटरीज में भी आपके अच्छी पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकता है, लेक्चरशिप मिल सकती है अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने टीचिंग नॉर्म्स के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन बढ़ाया तो। मैं थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रही हूं अभी टॉपिक से और मैं आती हूँ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो ये सरकार आते हुए 2 साल में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, यानी अब जो बच्चे 10वीं में हैं वो 12वीं पास होते तक शायद ये पॉलिसी पूरे राष्ट्र में अप्लाई हो जाएगी और लागू हो जाएगी। क्या कहते हैं इस पॉलिसी में? इस पॉलिसी में ऐसा कहा जाता है कि आपको अगर बीएससी करना है तो अभी तक ना दे वर रिजिड, ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, बॉटनी यानी बॉटनी, जोलॉजी यानी जोलॉजी, केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री, मैथ्स यानी मैथ्स, इतना यानी इतना, उतना यानी इतना। बट अभी आपको एक खुशी की बात बता दूं, आप लोग अपने सब्जेक्ट खुद चुन सकते हैं। और वो सब्जेक्ट कैसे होंगे? वो सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिजिक्स के साथ साथ मुझे एक लैंग्वेज भी पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है, तो लेट मी टेक एडमिशन इन सच कोर्स वेयर देयर इज इंग्लिश आल्सो एंड फिजिक्स आल्सो। बट दिस कॉम्बिनेशन इन दिस वर्ल्ड in 2021 in India was not possible, and that is why in 2021 it is already decided that with coming 2 years, आते हुए 2 साल में ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लागू हो जाने वाली है और उसमें आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी यानी एक ब्रांच से एक सब्जेक्ट लिया, दूसरे ब्रांच से दूसरा लिया, या एक ब्रांच से 2 लिए और तीसरा सब्जेक्ट हमने तीसरे ब्रांच से लिया। मींस इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साइंस एंड 1 आर्ट्स, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साइंस एंड 1 कॉमर्स। बहुत जरूरी है ये समझना, कॉमर्स विथ मैथ्स is there available in Mumbai University at graduation level, but अब 11th 12th में भी और 12th के बाद भी ये subjects आने वाले हैं। You're very fortunate, dear students. Within 2 years, this national policy of education is going to give you a lot. Means now you can choose music along with chemistry. अगर कोई अच्छा गाता है और अगर गाने की परीक्षा पास करके उसका शास्त्र शुद्ध अभ्यास करना चाहता है तो वो म्यूजिक ले सकता है, साथ में गणित रह सकता है। कॉमर्स के सब्जेक्ट जैसे एसपीओसी के साथ मैथमेटिक्स ये भी अवेलेबल है पर बहुत कम जगह। पर अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के द्वारा आप ये सब कर सकेंगे। अगर गलती से आपको कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण, पर्सनल प्रॉब्लम के कारण बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो आज तक क्या होता था, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, डिग्री उसी वक्त मिलती थी जब आप 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लो। लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहती है कि आप 1 साल भी कंप्लीट करो तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा कि आपने ये 1 साल यहाँ का कंप्लीट किया है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दीज चेंजेस। ये चेंजेस हम लोगों को पता रहने चाहिए ताकि हमको 12वीं के बाद जो भी चीजों का चयन करना है वो आसान हो जाए। 10वीं के बाद आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के अलावा पॉलिटेक्निक की भी फील्ड चूज कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा मिलता है आपको 3 साल का और वो डिप्लोमा मिलने के बाद आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकते हैं। इंजीनियरिंग के जैसे अलग अलग ब्रांचेस हैं वैसे ही पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा के भी अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं, जिसमें टेक्सटाइल का डिप्लोमा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग समझते हैं, जो क्लोथिंग, कपड़ों के वीविंग यानी कपड़ों की बुनाई के साथ जो टेक्निकली परफेक्ट नॉलेज आपको देते हैं, दैट इज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इट्स अ वंडरफुल डिप्लोमा एंड देन लॉट ऑफ प्लेसमेंट्स आर अवेलेबल इन क्लोथिंग इंडस्ट्री आफ्टर दिस डिप्लोमा। उसके बाद आप डिग्री भी कर सकते हैं टेक्सटाइल। एक और ब्रांच है जिसको कहा जाता है होम साइंस।
काफी लोगों का ऐसा मानना है कि होम साइंस की ब्रांच मतलब क्या पढ़ाते हैं, दाल चावल कैसे बनाना, पूरी सब्जी कैसे बनाना। अब वो आइडिया आप निकाल दीजिए मन से। होम साइंस में अभी होम मैनेजमेंट नाम का भी सब्जेक्ट है, और मुझे क्या अच्छा लगता है उसके बारे में कि जैसे बैंक के ट्रांजैक्शंस है, जैसे बाहर जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जैसे किसी के साथ डील करना है, इंटीरियर डेकोरेशन करना है, ये भी होम मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड फूड साइंस। फूड साइंस यानी केवल खाना कैसे बनाना वो नहीं सिखाते उसमें, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू सिखाते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू सिखाते हैं, स्क्वायर मील यानी क्या ये सिखाते हैं, और फूड इंडस्ट्री में भी हमको किस तरीके से जॉब मिल सकती है या अपना खुद का बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं, उसके भी बारे में बताते हैं। प्लीज मेक अ नोट, होम साइंस इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स। केवल लड़कियों के लिए होम साइंस ये विषय नहीं है। You know something? Best of the chefs in the world are men. बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आदमी लोग, लेकिन कुछ परंपराओं के कारण हम लोगों के मन में ये एक आइडिया फिक्स है कि खाना और लेडीज, खाना एंड फेमिनाइन जेंडर, खाना बनाना और औरतें, इन्हीं का संबंध है। ऐसा नहीं है। चेंज योर आइडियाज, चेंज योर आइडियोलॉजीज, बहुत जरूरी है। अपना पेट तो सबको ही भरते आना चाहिए भाई, वो लड़की रहे कि लड़का। आज लड़कियां जैसे लड़कों के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं, वैसे लड़कों को भी अपने घर में अपने पेट का ख्याल रखने का और उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। अपना खाना अपने को बनाते आना चाहिए। इसकी वैल्यूज क्या है, न्यूट्रिटिव क्या है, अलग अलग डिशेस कैसी बन सकती है। बहुत बढ़िया से बढ़िया शेफ जो है वो आदमी ही है। बहुत कम औरतें जिनका नाम इस फील्ड में बहुत इससे लिया जाता है, और ये हैरानगी की बात है कि हम सोचते हैं कि होम साइंस ये सब्जेक्ट केवल लड़कियों के लिए है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी इंटीरियर डेकोरेशन और फैशन डिजाइनिंग के बारे में। देयर आर आई मीन स्काई इज द लिमिट फॉर दैट। देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दीज डिप्लोमास आल्सो फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। Each architect definitely has a good interior designer and good interior decorator. उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, अलग अलग कपड़े, जैसे मैंने अभी आपको शेफ्स के बारे में बताया ना, बेस्ट ऑफ द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर मेन, वैसे ही बेस्ट ऑफ द फैशन डिजाइनर्स एंड बेस्ट ऑफ द ब्रांड होल्डर्स फॉर क्लोथिंग इन पेरिस आर ऑल मेन। याद रखना, फिर भी कढ़ाई बुनाई स्टिचिंग ये सब औरतों का कहा जाता था जिम्मा, बट नहीं, अभी men have equal right in that field। उस फील्ड में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कॉमर्स के फील्ड में तो आप सब जानते हैं, बैंकिंग के बारे में एक ही समझते हैं सब लोग, पर ऐसा नहीं है। देयर इज CS कंपनी सेक्रेटरी, देयर इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देयर आर बैंक्स एंड देयर आर न्यूमरस अवेलेबल जॉब्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आर्ट्स लेते हैं लोग तो ऐसा समझा जाता है कि इन बच्चों को कुछ आता नहीं है इसलिए इन्होंने आर्ट्स लिया। ऐसे नहीं होता है। मैं आज मम्मी डैडी से जो इस सेशन में प्रेजेंट है उनको कहना चाहूंगी कि अगर एक बच्चा चाहता है कि उसको मैथ्स फिजिक्स नहीं समझता, केमिस्ट्री नहीं समझता, कॉमर्स के कैलकुलेशंस नहीं आते, पर उनको लैंग्वेज अच्छी लगती है, स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है, भाषा का प्रयोग कर किसी के साथ मुखातिब होना अच्छा लगता है, तो उन्हें आर्ट्स ये फील्ड का चयन करने दीजिए। आर्ट्स करके क्या करोगे, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। आर्ट्स करने के बाद भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्या आपको पता है, इतने सारे IAS ऑफिसर्स से मैं मिली हूँ इस देश के, और उन लोगों ने, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बेसिक डिग्री उनकी वो है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए उन्होंने आर्ट्स कला शाखा का प्रयोग किया है। पॉलिटिकल साइंस and sociology are the major subjects they have chosen to appear for their UPSC। आर्ट्स की ब्रांच को कम मत समझिए। आपको पता है मुंबई पूना में आर्ट्स की ब्रांच सबसे पहले क्लोज होती है 11th क्लास के एडमिशन के वक्त। 96% पे आर्ट्स की ब्रांच क्लोज होती है, और साइंस सबसे आखिरी में भरा जाता है ना हैरानी की बात। हम अपने अपने स्टेट में यही समझते हैं कि साइंस यानी सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग चीजों का अलग अलग इस्तेमाल करके उस बच्चे को आगे उस फील्ड में जानकारी दी जा सकती है।
मैं बताऊं आपको, अभी आपने मेरे बायोडेटा में सुना कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चरर हूं, मैंने किताबें लिखी हैं 10वीं और 12वीं के लिए, मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज पे हूं, सब सच है। लेकिन क्या आपको पता है एक बात, इफ आई लव केमिस्ट्री फॉर माई ओन सन, केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री। उसको नहीं अच्छा लगता केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट, हाँ, पर उसको हिस्ट्री अच्छा लगता है। जब उसने 10वीं के बाद आर्ट्स फील्ड का चयन करने का सोचा और बताया, तो मुझसे ज्यादा आजू बाजू वाले और हमें जानने वाले पहचानने वाले ज्यादा परेशान थे। कुछ कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कह दिया कि मैडम के बेटे को अब तो जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी, हो गया उनका तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। बट आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू, he is owner of one of the drama companies called Insignia, और नागपुर के चिटनवी सेंटर नाम की बहुत अच्छी जगह में उसके ड्रामास प्रेजेंट होते हैं। he is a post graduate in mass communication और and presently he is working as editor of one of the magazine। उसके अलावा उसके अपने खुद के काम चलते रहते हैं, उसका राइटिंग चलते रहता है, उसके अलग अलग सेशंस चलते रहते हैं। एट द एज ऑफ 23 he was the national resource person for Symbiosis। Can you imagine that? Symbiosis 23 years में वो एक कंपनी ओन करता है और Symbiosis का वो रिसोर्स पर्सन करके काम कर चुका है। ये मैंने अपने आप की बढ़ाई करने के लिए नहीं बताया आपको, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आर्ट्स फील्ड को जिसको सब लोग बहुत ऐसा कम समझते हैं, उसे कम मत समझिए। इक्वली इंपॉर्टेंट है आर्ट्स की फील्ड। अगर भाषा ही नहीं है तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आप एक बात बताइए कि मैं बात कर रही हूं और ये बातें इतनी अच्छी बढ़िया चल रही है, और मैडम there will be a chaos immediately and you will say मैडम आपने माइक म्यूट, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्यों हो रहा है सर? मैंने म्यूट किया था मेरा माइक, ये बताने के लिए कि भाषा कितनी जरूरी है। Language is very important. If you are unable to hear, you are unable to get my point, hear my words, you became uncomfortable within 5 seconds। 5वें सेकंड में मुझे मैसेज आया कि मैडम प्लीज अनम्यूट योर माइक, योर माइक इज म्यूट। प्लीज रिमेंबर, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्ट्स अगर कोई लेना चाहता है तो उनको कम मत समझिए। आर्ट्स में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लेक्चरशिप तो मिलती ही है, टीचरशिप तो हम कर ही सकते हैं, पर उसके अलावा भी कई कई ब्रांचेस हम लोगों को ओपन है। ये आर्ट्स फील्ड में अगर आप कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लो तो आप इंटरप्रेटर यानी ट्रांसलेटर्स और दुभाषी व्यक्ति यानी आप देखते होंगे बड़े बड़े लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स जब आते हैं तो दोनों अपनी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो उनके साथ इंटरप्रेटर रहता है, इनकी भाषा को दूसरे को उनकी भाषा में वो ट्रांसलेट करके बताता है। आर्ट्स की फील्ड में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर फॉरेन लैंग्वेजेस सीखी तो आप इंटरनेशनल लेवल तक भी काम कर सकते हैं। This is a techno savvy world, and in this world, along with any branch you choose, if you study advanced courses in computers, nothing like it. There are various other branches which are also available for you। Graduation किसी भी फील्ड का होने के बाद आपको डिफेंस सर्विसेज में भी पोस्टिंग मिल सकती है। एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी has various posts for young ladies, now ladies also, and gentlemen, to be filled in by our Indian government। My dear friends, मैंने आपको एक छोटा सा ब्यौरा देने की कोशिश की कि इसमें आप कई कई चीजें कर सकते हैं, छोटे मोटे डिप्लोमा से लेके बड़ी बड़ी डिग्रीज तक। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अप्लाई हो जाएगी ना, 2 साल बाद आ जाएगी, तो आप याद रखिए आप इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स भी कर सकेंगे उसमें, यानी 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का कोर्स। सपोज मुझे बीएससी बीएड करके बच्चों को सिखाना है, तो मुझे अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बीएससी के साथ और 1 साल मुझे इंटीग्रेटेड सर्व समावेशक ऐसा 4 साल का एक कोर्स भी मिलेगा। मैंने कोशिश की कि मैं आप तक पहुंच पाऊं, अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड्स में आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है। अब मैं आती हूँ एक मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो है स्पोर्ट्स। अगर कुछ बच्चे खेल में रुचि रखते हैं तो उनको बढ़ावा दीजिए, उनको राज्य स्तर पर
उनको राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की अनुमति दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट खिलाड़ियों के लिए अच्छे अच्छे जगह पर रिजर्व्ड रहती है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स, रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक and many other Indian nationalized banks have the posts for the sportsmen who have played up to state and national level. मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के अनुसार रेलवे में भी अच्छी नौकरियां मिल सकती है, साथ ही में डिफेंस सर्विसेज में भी इसके लिए काफी जगह रिजर्व की रखी है, रिजर्व रखी जाती है। महिलाओं के लिए अभी तक के ग्राउंड जॉब अवेलेबल नहीं था, लेकिन नाउ ladies also are taken in the ground job in the Indian Defence Services, that is Army, Navy and Air Force. There are short service commissions जैसे 5 साल के लिए होते हैं और उसके बाद में बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, and there are various and numerous branches available. Sky is the limit. I would definitely speak on the teaching profession. बट मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही करके टीचर मत बनिए। टीचर बनने के लिए आप में वो जज्बा होना चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए कि मैं सब लोगों तक पहुंच पाऊं, मेरी आइडियाज, मेरी भावनाएं सामने वाले तक पहुंचाने का अगर वो आप रखते हैं, वो कशिश है आप में, तो ही आप टीचिंग प्रोफेशन का चयन कीजिए। नहीं तो मैं कई लोगों से मिलती हूँ और वो कहते हैं मैंने बहुत जगह ट्राई किया मैडम, कहीं नहीं मिला, तो फिर मैंने टीचिंग प्रोफेशन में आने का डिसाइड किया। Please don't do that. Each profession has its own importance. मैं आपको और भी बताना चाहूंगी, म्यूजिक के क्षेत्र में भी आपको काफी अपॉर्चुनिटीज है। आपको लिखने के क्षेत्र में है, जो आर्ट्स लेके आप कर सकते हैं, कंटेंट राइटर करके आप काम कर सकते हैं। There are various branches and various field. Even photography has a bright career in there. बट उसके लिए आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर शिक्षा लेनी पड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, I can go on and on for 2 hours also explaining you this, but now I want you to talk to me. मुझे इच्छा है कि आप मुझसे बात कीजिए। आज आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, तो बेझिझक आपके मन में जो सवाल है वो प्लीज पूछिए। क्या होगा, आपके मन का सवाल हो सकता है किसी और के भी मन में हो, और आपने पूछा तो कई लोगों के उसको जवाब मिल जाएंगे। तो मैं चाहती हूं कि आप मुझसे बात करें। डोंट बी अफ्रेड। सी, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और वो करना ही चाहिए, लेकिन बड़ों का सम्मान करना इसका मतलब मुझे कुछ पूछना है तो वो भी नहीं पूछना, ऐसा नहीं होता। सो प्लीज ओपन अप डियर फ्रेंड्स, ओपन अप। I told you, I'm also a counselor. मैं आप जैसे बच्चों से, आप जैसे लोग उस एज ग्रुप से मिलती हूँ और उनके अलग अलग सवाल को मैं जवाब देती हूँ। प्लीज डू नॉट हैव द स्ट्रेस इन योर माइंड। किसी चीज को स्ट्रेस लेके आप मत बैठिए इस सेशन में। यू नो, आपके लिए आपके स्कूल ने ये इतना सेशन दिया है, आपको इंटरैक्ट कीजिए, कुछ बोलिए, ताकि मुझे और आपको दोनों को एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हमने आज कुछ किया एक दूसरे के लिए। तो मैं क्या पहला सवाल एक्सपेक्ट कर सकूं आपसे? कोई पूछेगा मुझे सवाल? Good evening, ma'am. Yes, good evening. Good Ma'am, evening, ma'am. Yes. actually, I want to ask a question. Yes. Ma'am, that how to make a right choice or an accurate decision that we are interested in that particular field, or how to be specific towards our goals. How to be specific towards your goal, beta, is a good question. But you know, that will be after a dialogue with your own. You have to have a dialogue with yourself. By this time, when you come to 10th class, are you a student of 10th class or are you a student of 12th class? Can you specify that? Ma'am, I'm student of 10th class. 10th class. So 10 years from 1st to 10 and 2 years before that. That means in 12 years of your learning career, by this time, you must have understood something. ऐसा कभी तो लगा होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है, या ऐसा लगा होगा कि हिंदी का सब्जेक्ट आया तो मुझे नींद आती है। हाँ, पर फिजिक्स शुरू हुआ कि मुझे बहुत पसंद आता है। अगर मैथ्स के सर ने शुरू कर दिया प्रॉब्लम सॉल्व करना तो मुझे बहुत पसंद है। अगर
पर मुझे मैथ्स और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नींद आती है। लेकिन हाँ, कभी लैंग्वेज की क्लास शुरू हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ, और पढ़ाते जाना चाहिए टीचर ने। या फिर मुझे ऐसा लगता है ये सब बकवास है, खेल का पीरियड कब शुरू होगा? when can I start learning? When can I start learning? When can I start studying about what should I say? स्पोर्ट्स के बारे में मुझे कब जानकारी मिलेगी? कब मैं ग्राउंड पे जाके खेलूंगी? या फिर म्यूजिक सुनते वक्त आपको कभी ऐसा लगा होगा कि आई कैन सिंग वेरी वेल, आई कैन, मुझे भी अगर ऐसा चांस मिला तो मैं जरूर इस फील्ड में आगे बढ़ूंगी। मैं आपसे अब सवाल करना चाहूंगी, मैंने इतनी सारी कंडीशंस बताई, इन कंडीशंस में से आपको क्या लगा कभी? Yes, ma'am. Actually, I'm very curious to know about the diseases, their symptoms, and their treatments, or how they spread. So I'm interested in biology. So you are interested in biology. See, your own question had the answer, बेटा, है ना? कि आपके सवाल में ही आपको जवाब मिल गया। सिर्फ मैंने क्या किया, एक डायरेक्शन दी आपको सोचने की, बराबर है? और आपने 2 मिनट में मुझे बेझिझक जवाब दिया कि मुझे क्यूरियोसिटी है अपने डिजीजेस के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए। तो आई एम इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। अब देखो बेटा, आपको अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप प्लेन बायोलॉजी लेके भी आगे बढ़ सकती है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री है। केवल आप डिजीजेस के बारे में जानना चाहती है, या फिर आप उसको क्योर कैसा करना ये भी समझना चाहती है? वो अगर है तो आपने डेफिनेटली एमबीबीएस की फील्ड चूज करनी चाहिए। अगर एमबीबीएस नहीं करना है आपको और इतने साल आपको लगता है कि नहीं, तो आप प्लेन बीएससी करके, एमएससी करके, उस सब्जेक्ट में पीएचडी करके, बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में पीएचडी करके भी आप डिजीजेस और उसकी क्योर के बारे में अपना योगदान दे सकती है। Yes, ma'am. Thank you so much. I'm grateful for this. No, don't be grateful. It's my pleasure to be, and I'm happy that you have asked me a question. So 11th 12th में अभी आप साइंस लीजिए, जिसमें बायोलॉजी विषय होना अनिवार्य है, और 12वीं के बाद फिर आप बायोकेमिस्ट्री या फिर एमबीबीएस ट्राई करना है। आप सी, एमबीबीएस के लिए जाने के लिए मतलब अपनी तैयारी होनी चाहिए कि काफी साल तक हम लोगों को पढ़ते रहना पड़ता है, काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इतने साल में पढ़ने के बाद फिर सेटलमेंट जब आता है लाइफ का, इट इज इन योर 30s, यानी 30 साल के ऊपर जाके हम सेटल होते हैं। और अगर हमारा पैशन है तो वो हमने जरूर करना चाहिए। अगर आपको एमबीबीएस नहीं करना है तो मैंने आपको बताया माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, उन फील्ड्स में आप 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद पीएचडी करके भी अपना योगदान दे सकती है। ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome. Any other question? Please ask. Good evening, ma'am. Good evening. My name is Shivam Dubey. I'm currently studying in class 10th. Okay. So, ma'am, you have just talked about the defense. You can go in Air Force or Army. Yes. So, ma'am, can you please tell me that what are the exams by which you can enter into the Army or Air Force? And apart See, from that, what subject are beneficial for that? Yes. It is always better that you have mathematics for that, because there is a paper called reasoning. उसमें एक रीजनिंग का पेपर रहता है बेटा, जो आप बेसिक अरिथमेटिक में अगर पक्के होंगे तो वो आपको जवाब देना बहुत आसान होता है। इसलिए 11th 12th में बेस मैथमेटिक्स के साथ साइंस रहना बहुत जरूरी है। ठीक है? ये एग्जाम एनडीए भी होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एग्जाम के थ्रू आप अगर जाओगे तो स्काई इज द लिमिट। बहुत अच्छा करियर मिल सकता है, बहुत अच्छी नौकरी आपको, नौकरी से ज्यादा मैं उसे कहूंगी देश सेवा, और देश सेवा और साथ में satisfaction that I have done something, मैंने कुछ करने के लिए, मैंने कुछ किया। इसके लिए आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट योर पोस्चर, योर बॉडी, योर हाइट, योर हेल्थ। आपकी हेल्थ, आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। काफी टफ होता है सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ ग्राउंड्स,
और वो सिलेक्शन होने के बाद काफी टफ ट्रेनिंग रहता है, और वो ट्रेनिंग करने के बाद आप एनडीए क्लियर होके जब आप पोस्टिंग करके जाते हो तो आपकी शान कुछ और रहती है। देश सेवा तो होती ही है, साथ में आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 11th-12th में साइंस ये बेस रहना चाहिए, एनडीए की एग्जाम के द्वारा आप जा सकते हैं। There are other examinations also, and they are after graduation. They are called SSB examinations, short service commission की examinations रहती है वो, और उसमें आपको 5 से लेके आगे की कुछ साल का अपॉइंटमेंट मिलिट्री में मिल सकता है। उसका पोस्टिंग जो होता है वो एनडीए की पोस्टिंग से टोटली अलग होता है, बट एनडीए के थ्रू गए हुए गाइज आर टफ गाइज, एंड यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई to go through NDA for the defense services. Other than that, there are, as I told you, the exams for the short service SSB exams है, short service commission की exams है, और उसमें आपको postings है अलग अलग post पे। आप अगर इंटरनेट पे जाके इसके बारे में सर्च करो तो यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माय टुडेज लेक्चर। यू नो, अपना एक लिमिटेड टाइम में ये लेक्चर अपने को करना है, और आपको अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप वो इंटरनेट पे जाके उसके बारे में मिल सकते। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको। साइंस जरूर रखिए 11th-12th में, रीजनिंग का पेपर रहता है उसमें, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहता है, और आपको बेसिक अरिथमेटिक भी आना जरूरी है, प्लस आपके हेल्थ पैरामीटर्स और आपका पोस्चर जिसको हम फिजिक कहते हैं वो एकदम परफेक्ट और बढ़िया होना चाहिए। योर आई साइट, यू शुड नॉट वेयर एनी स्पेक्टिकल्स, आपकी आई साइट परफेक्ट होनी चाहिए, आप कोई डिजीज नहीं रहने चाहिए, आपकी हाइट उतनी पर्टिकुलर जो मेंशन है वो रहनी चाहिए। ये कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हो तो एनडीए के थ्रू जाना बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे मैम अगर हम एनडीए के थ्रू चले गए तो फिर हम तो 10वीं 12वीं पास रहेंगे, फिर कैसा? पर अगर आप कमीशनड होंगे एनडीए के थ्रू तो बाद में आपको स्टडी लीव मिलती है गवर्नमेंट की ओर से, जिसमें आप इंजीनियरिंग से लेके मेडिसिन से लेके उनके खुद के मिलिट्री के कॉलेजेस में आपकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लाइक एएफएमसी, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, नासिक है जिसका बेस, और पूना में भी है ये कॉलेज, और वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस हर जगह है। आप इंजीनियर बन के भी आर्मी में जा सकते हो, आप डॉक्टर बन के भी आर्मी में जा सकते हो, आप ग्रेजुएशन करके भी आर्मी में जा सकते हो। तो आपको किस तरह से, आपको क्या लगता है कि आप फ्रंट लाइन में जाके सोल्जर्स बन के लड़े, यानी ऑफिसर सोल्जर बन के लड़े, या आपको ग्राउंड जॉब करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा? वो सोच के आपको आगे का डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम बेटा। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I am a student of class 12th commerce. ओके, Ma'am, which field we can take after 12th? Ma'am, mostly people talk about CA, but I don't want to be a CA. यस। What ma'am, और क्या वो fields हैं जो अपन कर सकते हैं? बहुत सारी फील्ड्स हैं। क्या आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था? Yes, ma'am. आप अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था तो आप बीकॉम कर सकते हैं इकोनॉमिक्स लेके, और क्या आपको पता है कि आप बीए भी कर सकते हैं जिसमें आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बाकी के सब्जेक्ट आर्ट्स के रह सकते हैं। इकोनॉमिक्स लेने के बाद इतनी सारी फील्ड्स अवेलेबल है अपने को। क्या आपको पता है कि कुछ डिसीजन लेने के पहले गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोलो या नेशनल गवर्नमेंट बोलो, उसमें राय लेने के लिए ऐसे अलग अलग तरह के कोर्सेस किए हुए लोगों की एंट्री उनके टीम में करते हैं, और ये लोग रहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वाले। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मुंबई में ऐसे कई कोर्सेस हैं जो कॉमर्स लेने के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे आपको अवेलेबल है। जैसे इकोनॉमिक्स को लेके आपको अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स लेने के बाद आप दूसरे देश में, अभी कोरोना के कारण आप दूसरे देश में एकदम एडमिशन नहीं ले सके, ठीक है, लेकिन यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में आपको इकोनॉमिक्स लेके कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ने की कई अच्छे चांसेस है। केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एक ही फील्ड नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी ये भी एक
बहुत अच्छा कोर्स है जो इक्विवेलेंट टू सीए कहा जाता है, और वो करने के बाद भी आपको काफी अच्छे जॉब्स अवेलेबल है और काफी अच्छा करियर अवेलेबल है। मैं आपसे और एक बात पूछना चाहूंगी, कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स अगर आप ट्राई करो तो उसके लिए भी काफी आप लोगों को in the Commerce Ministry of India, if you'll go on that site, e-commerce business, there are so many requirements with the different permutation and combinations. अलग अलग permutation और combination है जिसको हम interdisciplinary कहते हैं। जैसे गणित और कॉमर्स ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, वैसे ही आपको कई सब्जेक्ट के साथ आप कॉमर्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ आप कॉमर्स लेके आगे बढ़ सकते हैं, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मत छोड़िए आगे तक, यू हैव लॉट ऑफ स्कोप इन दैट सब्जेक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. If you want to become a teacher, then you can be a lecturer also by choosing proper subjects. अगर लेक्चरर बनना है तो नेट क्लियर करने की आप एम रखिए, आप इच्छा रखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर करनी चाहिए, आपने कहीं प्रोफेसर नेशनल लेवल पे बनना है तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है तो आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहना जरूरी रहेगा, देन ओनली योर एंट्री इन दिस फील्ड विल बी मोर मीनिंगफुल. कॉमर्स वाले बाद में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन द बैंक्स वो भी एंट्रेंस एग्जाम्स अपीयर कर सकते हैं. I'd like to tell you, in railways, there are very lucrative job offers for the postgraduates in commerce. Railway के कई बड़ी पोस्ट पे postgraduate in commerce की ही requirement मांगी जाती है. There are various fields where you can join in. Am I clear? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. कुछ जवाब मिला आपके सवाल का? और कुछ पूछना चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है आपको और कुछ पूछना है. Please. Ma'am, I want to ask you that, ma'am, I am thinking of MBA, that CAT okay. examination. Okay. MBA कौन से इसमें करना चाहोगे? क्योंकि MBA अलग अलग इसका है ना, तो आप किस में MBA करना चाहोगे? मार्केटिंग अभी मैंने वो है, सेल्स है, उसके बाद HR है, तो आप MBA किस में करना चाहोगे? मैम मार्केटिंग. मार्केटिंग में करना चाहोगे, तो आपको अगर मार्केटिंग में ही MBA करना है तो आप बीकॉम करके इकोनॉमिक्स रखिए साथ में और मार्केटिंग. एक बात बताऊं, MBA करना है तो IIM की एम रखिए कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसी जगह से अगर हमें डिग्री मिली तो हमारा करियर बहुत ही अच्छा रहे. आई मीन ट्राई योर लेवल बेस्ट फॉर दैट, एम वेरी हाई फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव इन. What I want is कि एकदम मुझे सिर्फ बीकॉम करके एक जगह अकाउंटेंट बनना है इतना ही एम मत रखिए, ये मेरा कहने का मतलब है. ओके? Yes. हाँ, I mean don't have low aim, right? IIM will give only postgraduate diploma. It will not give you degree. Let me tell you that. But the postings after that are very lucrative. ठीक है, मतलब IIM जो मैंने मेंशन किया तो वो आपको डिग्री भले ही नहीं देगा, वो डिप्लोमा देगा, लेकिन उसके बाद के जो प्लेसमेंट्स रहेंगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेसमेंट्स रहेंगे, ये बताना चाहूंगी. ठीक है, कुछ पहुंच पाई हूँ आप तक, बता पाई हूँ आपके सवाल का कुछ जवाब? ओके, थैंक यू. Thank you so much, ma'am. मोस्ट वेलकम. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. Ma'am, myself Devraj Basidia. I am a student of class 10th. ओके, Firstly, I want to thank you for giving your precious time to us. And you already cleared my many. हेलो, Yes, I ma'am. cannot hear you. Ma'am, my doubt was that. Are they, ma'am? Hello, हाँ बोलिए. ma'am. How to convince our parents to what we want to do, sir? Ma'am, this is my doubt. Is your parent with you? Either of the parent, मम्मी या डैडी है क्या आपके साथ में? No, ma'am. This time not. अभी नहीं, ma'am. उन्होंने आना चाहिए था, मैंने उनको डायरेक्टली समझाया रहता. आपको क्या कन्विंस करना है बताइए, मैं बताती हूँ उनको कैसे कन्विंस करना. Ma'am, I want to go in sports fields, but they said that there are many competition in that. So कंपटीशन that's what- कहाँ नहीं है? कंपटीशन Yes, ma'am. कहाँ नहीं है? हर जगह. पर मुझे बताइए आप कौन सा गेम खेलते हैं? ma'am, I am interested always with cricket, ma'am. Pardon? Cricket.
नहीं सुन पाई हूँ आपका गेम का नाम। मैम क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं? यस मैम। अच्छा, क्रिकेट आप कौन से लेवल पे खेले हैं? तो मैं अभी तो मैम यही लोकल लेवल खेला मैं, लेकिन देखो बेटा, आगे जाना है। लोकल लेवल पे आप क्रिकेट खेलोगे तो मैं भी बोलूंगी कि फिर कंपटीशन बहुत है, क्योंकि आप उस लेवल पे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और बहुत अच्छा आप पैसा कमाओगे। आपने अभी तक कम से कम आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, जैसी कूच बिहार ट्रॉफी होती है, जैसे गजदर लीग होते हैं, ऐसे अलग अलग कंपटीशन में हम आपने अभी तक के क्या आपके स्टेट को रिप्रेजेंट किया है? नो मैम, अभी नहीं किया। क्या आपने अंडर 19 में खेला है? नो मैम। क्या आपने अंडर 15 में खेला है? नो मैम। देखिए बेटा, अगर आपको स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में भी आपको मास्टरी करना जरूरी है। पेरेंट्स तो बोलेंगे ही कि आपने अगर ये दिखाया रहता कि मैंने तो अंडर 15 खेला है अपने राज्य के लिए, या फिर ये ट्रॉफी खेली है या वो ट्रॉफी के लिए खेला है, तो नेचुरली उन्हें भी लगेगा कि हाँ आप सीरियस हो। लेकिन अगर 10th में यानी 14 to 15 के एज ग्रुप में आकर आप अभी केवल लोकल क्रिकेट या गली क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर सही में उनका विरोध आपको करना जायज है। देखिए, आपको अंडर 15 स्टेट को रिप्रेजेंट करने के बाद आपको आगे के चांसेस रहे रहते है ना बेटा, आप समझ रहे हो? देखो, Yes, ma'am. पेरेंट्स कभी कभी हमेशा ही करना करके विरोध नहीं करते बेटा। आप अभी तक अगर रणजी ट्रॉफी बोलो, चलो रणजी ट्रॉफी नहीं, गजदर लीग बोलो, ये लेवल पे भी आप अगर खेल लिए रहते तो आपके पेरेंट को हमने समझाया रहता या बड़ों लोगों ने बात की रहती। पर अगर गली में क्रिकेट खेल के या अपने घर के पास के ग्राउंड में क्रिकेट खेल के आप बोलोगे कि मैं पढ़ाई ना करते हुए क्रिकेट में ही मास्टरी हासिल करूंगा, तो आपको अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ, show that you can do very well in that field and you can go up to state। ठीक है, मैं मानती हूँ कि नेशनल लेवल पे बहुत कंपटीशन है, कभी कभी एक गॉड फादर का भी रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या आपने स्टेट लेवल तक के अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एम रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं तो फिर मैं भी यही चाहूंगी कि आप जरूर ये सोचिए कि ये स्पोर्ट्स मेरी हॉबी और मुझे जिंदगी में अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, मैं ब्रेड अर्निंग के लिए मुझे क्या करना और मुझे क्या अच्छा लगता है। या तो आप प्रूव कीजिए अपने आप को, आप क्रिकेट में माहिर हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके पेरेंट्स अपने आप हाँ कहेंगे। और नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करके पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। राइट? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। Ma'am, I am Good Aman evening. Sthapak from 10th class, बोलो। and I Yes. have a doubt that which field is better for IAS officer. मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि IAS ऑफिसर इज आफ्टर अपियरिंग एंड क्लियरिंग UPSC एग्जामिनेशन एंड देन द पर्सनल इंटरव्यू, उसमें आपको बेसिक ग्रेजुएशन की जरूरत रहती है। If you are really comfortable with maths physics, you can take maths physics as a subject. If you're comfortable in sociology and political science, you can take those subjects. If you're comfortable in economics and secretarial practice, you can take those subjects. If you're comfortable in engineering, you can take engineering as a subject. मैंने आपको बताया कि मेरे कई IAS ऑफिसर्स जो पहचान के हैं, उनकी बेसिक डिग्री डॉक्टर या इंजीनियर की है, पर उसके अलावा, वो डिग्री के अलावा उन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर UPSC एग्जाम देकर क्लियर करके पर्सनल इंटरव्यू में आगे बढ़े हैं। तो ये सब निर्भर करता है आपकी चॉइस पे कि आपको क्या पसंद है। यू नो, अपनी चॉइस आखिरी तक रहती है। किसी के दबाव में आकर हम भले ही एक फील्ड चूज कर ले, उस तरह से आगे बढ़ जाए, लेकिन जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव पे हम जो हमें पसंद है वहां आते ही है। इसलिए 10वीं और 12वीं के टर्निंग पॉइंट में अगर आप अपने आप से बात करो कि मुझे क्या पसंद है, तो उसके अनुसार विषयों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट हो सकता है। I again repeat, there is no compulsion कि इंजीनियरिंग डिग्री के बाद IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, डॉक्टर डिग्री के बाद IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। इट्स नॉट दैट। फाइनली
It is a matter of your comfort. In which subject are you comfortable? Please offer those subjects for your studies and then appear for UPSC examination. What you require is a lot of confidence when you appear for the personal interviews and lot of current affairs knowledge for that. साथ साथ देश का शासन अनुशासित कैसे हो सके उसके बारे में भी आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी रहता है। तो IAS ऑफिसर के लिए केवल एक चीज को ध्यान में रख के नहीं चलना पड़ता बेटा। IAS ऑफिसर बनने के लिए जिसे कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज ऑब्जर्व्ड एंड इज सीन। ओवरऑल डेवलपमेंट किसी क्लास में जाके 4,000 रुपए की फी पे करके नहीं होती। ओवरऑल डेवलपमेंट होती है अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में और उन लोगों के साथ भी जो हमें पसंद नहीं करते। So overall development is a very different issue, and I mean I can give a separate lecture on that overall development. So IAS officer जो बनना है वो किसी डिग्री से नहीं बनता बेटा। ओके, IAS ऑफिसर बनता है ओवरऑल डेवलपमेंट से, ओवरऑल नॉलेज से, ओवरऑल वे ऑफ थिंकिंग से, नजरिया वो ओवरऑल होना चाहिए, उससे बनते हैं IAS ऑफिसर्स। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. बोलो। Ma'am, my question, I am Aditi of class 10. Hi Aditi. And ma'am, my question is, ma'am, with our academic activities, which extracurricular activities we should do at daily basis? With your academic activities, should you do your curricular activities or not? That is what is your question? Extracurricular activities, yes, ma'am. हाँ, तो आपने वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यही पूछ रहे हैं ना आप मुझे? मैम कौन सी करनी चाहिए जिससे लाइक अच्छा कौन सी करनी चाहिए ऐसा पूछ रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, एक बात बताऊं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्ट्रेस कम करने के लिए की जाती है। जैसे परीक्षा आ रही है, स्ट्रेस आप लोग ले लेते हो, आप नहीं लेते तो आजू बाजू वाले दे देते हैं और बोलते हैं अरे 10वीं में है, पढ़ाई नहीं कर रही, ऑल दैट। ओके, स्ट्रेस डेवलप होता है, उसको कम करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जाती है। अदिति, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि आप म्यूजिक में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप रीडिंग में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप हैविंग अ डायलॉग विद पीपल उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट ले सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन्स होती है इलोक्यूशन डिबेट उसकी। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि आपको एक कुछ ना कुछ अच्छी आदत रहनी ही चाहिए, जिसको आप एक सुंदर सा नाम दे रही हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो आदत के थ्रू आप अपना स्ट्रेस कम कर सकती है। क्या आपको पता है जिनके घर में पेट्स रहते हैं, पेट्स या बर्ड्स, उनके थ्रू भी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जाती है और उससे स्ट्रेस काफी कम होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मैंने जैसे बताया कि म्यूजिक में आप खुद गाना गा सकती हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को आप प्ले कर सकती हैं। जैसे आप अच्छी वायलिन बजा सकती है, सितार बजा सकती है या गिटार बजा सकती है या किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम्स, गिटार, सितार, अपनी पसंद के अनुसार आप इवन फ्लूट आप चूज कर सकते हैं और आप उसमें अपना मन इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को एक्स्ट्रा समय में ही करना चाहिए। मतलब अगर पढ़ाई का समय आप उन एक्टिविटीज में दोगे तो वो गलत रहेगा। इसलिए पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का इक्वल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर बेटा? मैम, like I am interested in dance also, like